Assalamu alaikum everyone and a very good evening. Assalamu alaikum Dr. Javiria, are you with us? वालेकुम अस्सलाम मैम। Walaikum Uh, assalam. Walaikum salam. Dr. Javiria, can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Okay. We are now starting the session. Okay, On sure. behalf of uh, on behalf of Nurturing Community Pharmacy in Pakistan, I warmly welcome you all to our winter internship program, session 5. Today's session focuses on a very important and a timely topic, antimicrobial stewardship in community pharmacy. So, before we begin, a very few quick points must be remembered in your minds. Please keep your microphones muted throughout the session to avoid background noise. You are encouraged to post your question in the chat box and use your mics. Raise your hands. There will be question answer segment at the end of the session where selected questions will be addressed. Kindly remain respectful and professional during the session. And the session is recorded. It is now my great pleasure to introduce our distinguished speaker for today. We are honored to have Dr. Javeria Khalid with us. Dr. Javeria is currently serving as a branch supervisor at Al Khidmat Community Pharmacies, and she brings valuable practical experience in community pharmacy practice and has been actively involved in promoting rational medicine use and antibiotic stewardship at the community level. So we are very confident that her insights today will greatly enhance our understanding of how the community pharmacist can play a vital role in combating antimicrobial resistance. So without any further delay, I would like to invite Dr. Javeria Khalid to begin her session. Thank you so much, ma'am. The floor is yours. Thank you so much for introduction. Um, my name is Zaviria Khalid. I have worked as a community pharmacist at Al Khidmat Pharmacy, and now I am leading three branches of the Al Khidmat as a community pharmacies as a branch supervisors. The first of all, I have so many, I read so many slides, presentations, but I want to be a little bit interactive with you guys. So, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ा फॉर्मल उसमें डिस्कशन के थ्रू भी रखते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कम्युनिटी फार्मेसीज के जो हमारे चैलेंजेस हैं या फिर एक फार्मासिस्ट के चैलेंजेस हैं एंटीबायोटिक्स के रैशनल और इनएप्रोप्रिएट यूज के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो हम प्रैक्टिकली जो पढ़ के आ रहे होते हैं हम अपने 5 years के एक्सपीरियंस के साथ, और जब मैं भी अपने इंटर्नशिप में आई थी तो मुझे जो मैं इम्प्रेशन लेके आई थी एक फार्मासिस्ट का, और जो मेरे पास जो ट्रेनीज आते हैं और इंटर्नशिप्स के स्टूडेंट्स आते हैं और जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं और जो प्रैक्टिकली हम काउंटर के ऊपर पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए फेस करते हैं, वो एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो उसी के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी। स्लाइड शेयर्स बहुत सारे हैं और प्रेजेंटेशन भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली फेस कर रहे होते हैं चैलेंजेस को, पेशेंट्स के जो कुछ मेरे पास ऐसे सिनेरियोज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो जब हम पढ़ते थे और इंटर्नशिप कर रहे थे तब भी हमें यकीन नहीं आता था कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब कोई पेशेंट इतना अगर हम उसको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने साथ कुछ गलत कर रहे हो, अगर आप इस चीज को जो है वो इतना लाइटली ले रहे हो किसी एंटीबायोटिक के यूज को, या अदर ब्लड प्रेशर मेडिसिन को, या फिर कोई भी लाइफ सेविंग ड्रग्स को, जिस तरह से जो हमारे जो कम्युनिटी के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, एक तो होता है कि हॉस्पिटल और क्लिनिकल सर्विसेज के अंदर तो ये हमारे लिए बहुत कॉमन होता है कि वहां पर पेशेंट आया, एडमिट पेशेंट है, तो वो जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है उनकी फाइल्स भी रिव्यू कर रहे हैं, क्लिनिकल राउंड्स भी उनके साथ कर रहे हैं। बट एक कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो उसका जो चैलेंज वो सबसे पहला ये होता है कि वो हमारी फार्मेसी में आने के बाद डायरेक्टली उस मेडिसिन को कंज्यूम कर रहा होता है। मतलब उसको जब वो किसी हॉस्पिटल से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो डायरेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आया, उसने मेडिसिन परचेज की, घर गया, वो उसको जो भी काउंसलिंग मिली वो हमारी फाइनल एंड से होती है।
वो हमारे कम्युनिटी फार्मेसी से जाने के बाद, फार्मेसी से इंटरेक्ट करने के बाद वो उस मेडिसिन को कंज्यूम कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसका रोल मुझे लगता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जो चैलेंजेस भी हम फेस कर रहे हैं और उसके साथ हमें पेशेंट को ये कन्विंस करना कि कुछ ऐसे उसमें पेशेंट्स हमारे पास भी आ रहे होते हैं जिनको ये लगता है कि एज अ हम अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या फिर जो है वो अगर उनको बता रहे हैं कि आप जो डोजेज है उसकी मेडिसिन की उसको आपको कंप्लीट करना है, तो उनके ऊपर ये समहाउ इम्प्रेशन आता है कि आप जो है वो जो डॉक्टर ने बोला है वो कर दें, या जो हम कह रहे हैं जो डॉक्टर ने बोला है वो बात भी कट हो जाती है। और ये होता है कि बस आप जो है वो जितना जो मेडिसिन हम कह रहे हैं 2 डोज इनफ होंगी, 5 डेज के कोर्स की जरूरत ही नहीं है, तो जितना कहा है आप उतना कर दें। तो ये जो एक मुझे लगता है एंटीबायोटिक के यूज में या किसी भी मेडिसिन के लिए जो चैलेंज है हमारा, इनएप्रोप्रिएट यूज या फिर मिस यूज, या फिर उसको बहुत ज्यादा 14 डेज का कोर्स अगर फॉर एग्जांपल किसी मेडिसिन का है और सही नहीं हुआ तो 21 डेज का खुद ही कर लिया, या फिर 20 डेज का खुद ही हमने एक्सटेंड कर लिया कि सही नहीं हो रहा था, या अगर बीडी लेनी है तो टीडीएस खुद ही ले ली, जो टीडीएस उसकी इंडिकेशन ही नहीं है क्योंकि सही नहीं हो रही थी। तो ये मुझे लगता है कि फार्मासिस्ट के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, हमारे लिए मेरी आवाज आ रही है सबको? थोड़ा कोई कंफर्म करेगा कि मैं मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को, इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स को भी, ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ और अपने जूनियर्स को भी, और जब मैं खुद जूनियर थी तब भी, कि आप एक फार्मासिस्ट हो, आप किसी भी स्टेज पे, आप हॉस्पिटल्स में हो, हाँ, आप कम्युनिटी फार्मेसी में हो, या फिर आप जो है वो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हो, बट हैं हम फार्मासिस्ट और हम जो है वो ड्रग के डॉक्टर हैं। हम ड्रग के बारे में जितना हमें नॉलेज है, हम किसी भी जगह पे हो, इंडस्ट्री में हो, हॉस्पिटल में हो, ड्रग का जो इफेक्टिव इन एप्रोप्रिएट यूज है उसको जो है वो हमें मिनिमाइज करना है। ये हमारा एक बिगेस्ट चैलेंज भी है, हमारा एक रोल भी है, और हमें जो है इसके ऊपर ये नहीं देखना सबसे पहले कि हम किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, किस जगह पे काम कर रहे हैं, क्या रोल हम जो है वो वहां पर प्ले करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने अपने थ्रू आउट करियर मुझे जो एक्सपीरियंस मेरा है, जब मैं मेरे तब्बा हार्ट मुझे हॉस्पिटल फार्मेसी ज्वाइन की थी, तो मुझे याद है कि जब मेरे जो डायरेक्टर्स बैठे होते थे या मेरे सीनियर होते थे, तो मैं उनको देख के बहुत ये सोचती थी कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी। मतलब मैं कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं और उनको अगर ये बात समझाई जा रही है कि सर आपको अपनी डोज कंप्लीट करनी है, आप सिर्फ 2 डोज में ठीक तो हो जाएंगे, बट नेक्स्ट टाइम जब आपको ये इन्फेक्शन होगा तो आपको ये एंटीबायोटिक जो है उसकी आपकी बॉडीज के अंदर रेसिस्टेंट डेवलप कर चुकी होगी, तो आपको फिर हमें कोई और क्लास ऑफ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा और हायर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ेगा 5th जनरेशन पे, या फिर अब जो है मोस्ट कॉमनली हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक है बेरीजोल लिंजोलेट, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो है वो बैन हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अब हर दूसरी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ये लिखी जा रही होती है, क्योंकि जो है वो हम मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है भी या नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अब जो है वो अपनी 4-5 साल पुरानी प्रिस्क्रिप्शन को ही खुद रिफिल कर रहे हैं कि ये इन्फेक्शन हमें 4 इयर्स पहले हुआ था और इस मेडिसिन से ठीक हो गया था, तो अब हमें कुछ वैसे ही फील हो रहा है, तो अगेन आप ये प्रिस्क्रिप्शन दे दें। तो ये एक फार्मासिस्ट का काम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमारा जो रोल है उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी कि अगर कोई पेशेंट हमें रेसिस्ट कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा, तो हम अपना काम करना छोड़ दें। ये नहीं होता और ना ये होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करती हूँ कि मैं अगर दिन में फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैं अब ज्यादा काउंटर पे नहीं होती, तो मेरे जो फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं, अगर जरूरी नहीं है कि एक फार्मासिस्ट जिस जगह पे मौजूद है वहां पर एक चेंज लाना उस फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये लगता है। तो वहां पर जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल में आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन है, वो भी डायरेक्टली पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी जो है वो मेडिकेशन एरर्स
करेंगे तो डायरेक्टली पेशेंट को ही हार्म होगा। और अब मेजर जो हमारा गोल है फार्मासिस्ट का वो यही है कि हमें जो है वो रैशनल यूज जो है वो मेडिसिन का उसको मेक श्योर करना है। और मेडिसिन पेशेंट तक जिस भी थ्रू जा रही है, हम जिस भी लेवल के ऊपर हम अगर अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन करें, उनके लिए ट्रेनिंग्स रखें, उनको हम जो है वो कम्युनिकेट करें चीजों को, और साथ साथ उनको भी ये चीजें बताएं कि ये जो है वो पेशेंट के लिए हार्मफुल है। या अगर कोई पेशेंट आपके पास एंटीबायोटिक आके 2 और 3 मेडिसिन मांग रहे हैं, तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या हिस्ट्री है जो आपको उससे लेनी है। आपको उससे पूछना है कि ये आप अगर 2 मेडिसिन 2 टैबलेट्स ले रहे हो, तो ये तो 2 तो है ही नहीं। अगर दिन में आप ये 1 दिन की डोज है या फिर ये एक 1 टाइम की डोज है, तो आप कितने डेज से ये ले रहे हैं, या आपने डोज कोर्स अभी स्टार्ट किया है, या फिर आप क्या इसकी बैकग्राउंड है, वो पेशेंट से हिस्ट्री आपको लेनी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो पेशेंट के साथ जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। कम्युनिटी फार्मेसी में तो बहुत ज्यादा करती है, मैं ये कहती हूँ, क्योंकि पेशेंट्स जब आते हैं तो वो एक अलग माइंडसेट के साथ भी आ रहे होते हैं। उनको उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो अपने ऊपर जो एक ट्रस्ट डेवलप करना पेशेंट का, ये भी एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा इसमें भी रोल होता है कि वो पेशेंट जो कम्युनिटी का है, वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में वही पेशेंट आपके पास ही आ रहा है, आपके पास वो उसको फ्लू हो रहा है, वो कोई और प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है, वो हो सकता है अगर उसका जो ट्रस्ट है वो एक आपके ऊपर, एक फार्मासिस्ट के ऊपर डेवलप हो जाता है, तो वो पेशेंट फिर आपका आपके साथ, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी अगर आप उसको बताते हो कि ये जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी एग्जाम्पल इसकी ये देती हूँ, मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन आई थी, उसमें डॉक्टर काफी सीनियर डॉक्टर थे, उनको नहीं पता था, या शायद डॉक्टर्स को इतनी डोज का भी नहीं पता होता, उनको ये पता होता है कि इंडिकेटेड है, बट 500 mg में आती है या नहीं आती है, स्ट्रेंथ उसकी कौन सी अवेलेबल है, समटाइम्स डॉक्टर को नहीं पता होता। हॉस्पिटल फार्मेसीज में भी डॉक्टर्स हमसे जो है वो कंफर्म कर रहे होते हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं हम लोग। तो मेरे पास पेशेंट लेके आया था, प्रिवेंट के नाम से ड्रग आती है, टेनेडाजोल करके, 500 mg उनकी डोज थी, और वो 2 महीने से वो यूज कर रहे हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा इतना लंबा कोर्स तो नहीं होता है इसका। तो ये सेट के एक्चुअली ये बीडी है, दिन में 2 दफा है, और मैं कभी सुबह भूल जाता हूँ तो कभी शाम में भूल जाता हूँ। तो मैंने कहा कि आप अगर ये सुबह या शाम में भूल जाते हैं, तो ये 1 ग्राम में भी आती है, प्रिवेंट 1 ग्राम के अंदर अवेलेबल है, तो आपको एक ही दफा लेनी पड़ेगी, और आप इसको एक ही 1 टाइम यूज करके जो है वो अपना कोर्स कंप्लीट करके चेक करें। बट इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप जिस टाइम पर ले रहे हैं उसी टाइम पे आप 5 डेज या 10 डेज का कोर्स कंप्लीट करें। एंड 5 डेज बाद वो पेशेंट आए हैं, और वो मुझे उन्होंने बताया है कि थैंक यू सो मच, मुझे मैं 2 महीने से खा रहा हूँ और मैं इतना परेशान हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो है वो 1 ग्राम में भी आती है, और डॉक्टर मुझे यही कह रहा है कि आप जो है वो डोज कंप्लीट नहीं कर रहे, तो इस वजह से इन्फेक्शन आपका ट्रीट नहीं हो रहा। तो मैं सिर्फ बताने का मकसद ये कि इंटरवेंशन जो है वो जरूरी नहीं होता कि आप जो है वो इस चीज को, हमें कोई कंपटीशन नहीं है कि हमें ये बताना है कि वो डॉक्टर ने गलत लिख दिया है, या हम किसी को कोई ऐसी चीज बता रहे हैं। हमारा मेन पर्पस सिर्फ ये है कि पेशेंट जो है उस तक राइट चीज जाए, पेशेंट तक जो है वो यूज किस तरीके से कर रहा है, किस रूट से ले रहा है, इनहेलर्स हैं उसका यूज करने का क्या तरीका है, रोटा कैप्सूल्स हैं। मैं थोड़ा सा एंटीबायोटिक से हट के भी इसलिए बात करूंगी, क्योंकि अभी तक इन 5 years में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट इस तरह से आ रहे होते हैं जिनको रोटा कैप्स का पता ही नहीं होता कि उन्हें इनहेल करना है, वो किस फार्मेसी से ले रहे होते हैं, या वो खुद भी जो है बस जो डॉक्टर ने लिखा है मेजरली उस चीज पे ही फोकस करते हैं कि वो मेडिसिन लें और जाके यूज करें। तो बहुत सारी चीजों में फार्मासिस्ट का रोल मुझे लगता है रैशनल इस वजह से और ज्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी कम्युनिटी फार्मेसीज के ऊपर, जो फार्मासिस्ट है उस पर आती है कि पेशेंट के पास आपके हाथ से मेडिसिन जाएगी और वो फिर डायरेक्ट उसकी कंजप्शन पे जाती है, उसमें वहां पर उसके पास कोई सेकंड चेक एंड बैलेंस नहीं होता लाइक हॉस्पिटल फार्मेसीज। तो हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहली तो की स्किल हम जो कहेंगे वो है कम्युनिकेशन पेशेंट से। ठीक है, डॉक्टर ने हिस्ट्री लेके ही उसे प्रिस्क्राइब किया है, बट आप जब उसको मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हो तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उससे पूछो, अगर खास तौर पे आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, कि आप इसको कितनी डेज के लिए रहे। अगर वो कंप्लीट डेज की लेता है तो उसको फिर आपको ये भी बताना है कि ये टाइम डिपेंडेंट किलिंग है, तो आपको इसको फिर
टाइम पे लेना है, और फिर उसको ये भी बताना है कि टाइम पे अगर आप नहीं ले पा रहे तो और क्या मेजर्स हैं। लाइक आप अलार्म लगा सकते हैं, अलार्म लगा लें आप अपनी एंटीबायोटिक के लिए। मैं अपने मेजर पेशेंट्स को यही गाइड करती हूँ कि आप अलार्म लगा के इसको यूज करें, लेकिन आप डोज स्किप ना करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर ये एंटीबायोटिक आपके लिए, आप इसकी बॉडी जो है इससे रेसिस्टेंट डेवलप कर लेगी और फिर आपको अनदर हायर डोज पे जाना पड़ेगा। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी मैम आई एम ईशा खान। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेशेंट आया है या एक कस्टमर आया है एक कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, ठीक है, और वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आया है और वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स मतलब लेना चाह रहा है, ठीक है, तो एक कम्युनिटी फार्मेसी या एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट को मतलब उसे मतलब देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अगर तो वो नहीं भी देता, जैसे हमने डिफरेंट सेशंस अभी तक अटेंड किए हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स ये भी कह रहे थे कि अगर हम नहीं भी उसे देते वो एंटीबायोटिक, तो वो किसी और मतलब पाकिस्तान में तो ये बहुत आम सी बात है कि वो किसी और फार्मेसी से जाके ले लेंगे, ठीक है। तो हमें अगर हम फॉर एग्जांपल दे भी देते हैं उस एंटीबायोटिक को विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, तो मतलब तो फिर तो ये इरेशनल यूज़ नहीं हो जाएगा, तो फिर तो क्या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो जाएगी बॉडी के लिए। तो फिर हम इसमें हम एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पर कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? ओके, हाँ, मैं इसके ऊपर मैं अभी यही बता रही थी कि जो कम्युनिकेशन होती है ना, आप तो पहले तो पेशेंट से कम्युनिकेट करते हो ना, तो आपको उसका माइंडसेट समझ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है कि ठीक है आप नहीं देंगे तो हम कहीं और से ले लेंगे, और आप नहीं देंगे तो उसको, तो आप उसको अगर ये चीज थोड़ा सा कम्युनिकेट करो कि अगर इस मेडिसिन को, ये एंटीवायरल है, सबको हो रहा है और इसके लिए कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, आप कहीं और से भी ले लेंगे, लेकिन अगर आप कहीं और से ले लेंगे और एक्चुअल में आपको एंटीबायोटिक की नीड हुई और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो आपके लिए वो फिर एंटीबायोटिक यूजलेस हो जाएगी। तो आप पेशेंट को अगर सिर्फ ये कम्युनिकेट और गाइड कर दो कि आप ले लें कहीं और से भी, लेकिन इसमें नुकसान जो है वो आप अपना ही करेंगे, आप हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी हेल्थ ही इफेक्ट होगी। अगर आप उसको ये चीज कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपसे वहां काउंटर पे भले नहीं एग्री करे, लेकिन वो मैं मेक श्योर ये करती हूँ कि वो जाके बाहर से फार्मेसी से नहीं लेगा। मेरे पास तो मेजरली जब पेशेंट आते हैं इस तरीके से, तो मैं कुछ लॉजेंजेस होती हैं जो प्रिस्क्राइब करके, अगर आपको, क्योंकि पेशेंट की साइकी भी होती है कि वो नहीं खाएगा, उसको पता है कि वो अगर उसको एम्प्टी कैप्सूल भी दे दी ना अगर हमने, तो वो अगर उसको एंटीबायोटिक के नाम पे खाएगा तो उसको लगेगा कि मुझे कुछ इफेक्ट आया है। तो मेजरली जो है वो हम उसको अगर डिनाई कर दें कि नहीं आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और हम आपको एंटीबायोटिक नहीं दे रहे, अगर हम उसको डायरेक्टली ये मना करते हैं, क्योंकि ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी आता है, तो वो शायद इस चीज को रेसिस्ट करके कहीं और से ले ले। लेकिन अगर हम उसको एक्सप्लेन करें कि आप 2 to 3 डेज वेट कर लें, मे बी ये वायरल है और ये अपना टाइम लेगा, अगर आप कुछ प्रिकॉशंस ले लें, आप जो है वो गार्गल्स कर लें या नेबुलाइज कर लें, तो इन चीजों से आप बेटर फील करेंगे, तो आपको एंटीबायोटिक्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ इन फ्यूचर अगर आपको जो है वो कभी कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ जहां आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, तो आपकी बॉडी में उसके लिए रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप नहीं होगी। तो अगर आप इस तरीके से उस पेशेंट को कम्युनिकेट करते हो तो वो अंडरस्टैंड भी करता है, और अगर नहीं भी करता तो आपने अपना रोल तो प्ले करा, क्योंकि आप अगर कोई नहीं मान रहा तो इस वजह से हम ये तो नहीं कर सकते कि यार दे दो चलो निकाल के, ये हम नहीं देंगे तो कहीं और से ले लेगा। तो हमें उसको उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बताना हमारा काम है कि अगर आप कहीं और से भी लेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी फार्मेसीज के अंदर हमारे पास ये होता है, एक तो हॉस्पिटल्स की फॉर्मुलरी डेवलप्ड होती है, उनके पास कुछ स्पेसिफिक जेनरिक्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, वही प्रिस्क्राइब होते हैं। कम्युनिटी फार्मेसीज के अंदर आपके पास से कहीं से भी प्रिस्क्रिप्शन आ रही होती है, कुछ पेशेंट्स आपके लाहौर से आए हुए हैं, इस्लामाबाद से आए हुए हैं, कहीं से आउट ऑफ सिटी आए हुए हैं, और वो मेरे पास अभी रिसेंटली हुआ कि वो मेडिसिन लेके आए कि हमें आपके पास से लेनी है। तो एक चैलेंज हमारे लिए होता है कि पेशेंट जो है वो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हम बहुत ज्यादा मेजर कर रहे होते हैं कि ओके ये इतनी एक्सपेंसिव है तो फिर रहने दें। तो आई आस्क्ड हिम कि क्यों रहने दें, मतलब आप जो है वो जो सेफ्सफान लिखी हुई थी, बेसिकली सेफ्सफान जो काफी एक्सपेंसिव ब्रांड है, सेफेजीन का मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड सेफ्सफान है, बिकॉज वो पेटेंट है। तो उसकी वो 700 को समथिंग का था, और उसके साथ डॉक्टर ने एंटी एलर्जीज लिखी हुई थी और कुछ पेन किलर लिखी हुई थी।
सो ही सेड कि आप इसको छोड़ के सब दे दें। तो उस पे आपको फिर ये जज करना होता है कि पेशेंट क्यों जो है वो मना कर रहा है। देन आई आस्क के असल जो आपकी मेन मेडिसिन है वो यही है जो आपकी बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए आपको प्रिस्क्राइब की गई है, वो तो यही मेडिसिन है। सो ही सेड नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आप एक काम करें, मेरे पास तो इतना अभी कैश भी नहीं है, आप जो है वो पेन किलर और एंटी एलर्जीज दे दें और इसको स्किप कर दें। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल या किसी भी फार्मासिस्ट का होता है कि वो उस पेशेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी एक रैशनल यूज है कि उसने एंटीबायोटिक एक्चुअल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए स्किप कर दी, तो उसका तो इन्फेक्शन तो फिर ट्रीट ही नहीं हुआ ना, वो तो सिर्फ पेन किलर्स लेके जा रहा है। तो वहां पर फिर हमने उसको बताना होता है कि नहीं, इसमें हमारे पास और भी अच्छी कंपनीज में ऑल्टरनेट ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं जो आप ले सकते हैं और ये आपको कॉस्ट जो है इसकी से हाफ होगी। तो उस पे वो पेशेंट एग्री करता है और फिर ये आपको पता, अगर आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग हो कि पेशेंट ये मेडिसिन किस वजह से छोड़ रहा है, या तो वो बहुत ज्यादा कंप्लायंस के इशू है कि इतनी सारी दवाएं नहीं खानी, तो फिर आपको बताना है कि इतनी सारी दवाओं में से अगर आपको स्किप करनी है तो आप इसके अलावा सब स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये आपकी मेन जो मेडिसिन है वो है आपकी एंटीबायोटिक, और इसी की वजह से आपके सारे इश्यूज हैं, जो आपको पेन है आपके लिए, जो जो भी अदर इश्यूज आपको हो रहे हैं वो इस जो है वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं। तो इसके लिए आप जो है फिलहाल ये मेडिसिन तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से वो है तो फिर आप उसको ऑल्टरनेट जो है वो सजेस्ट करते हैं। ये चैलेंज आता है। और ये वाली जो आपके ईशा जो सवाल था, आई होप आप अंडरस्टैंड कर समझ गई होंगी इसका जवाब। यस मैम, यस मैम। कि आपकी जो कम्युनिटी फार्मेसी में भी और हॉस्पिटल फार्मेसी में भी कम्युनिकेशन आपकी फिजिशियन के साथ और पेशेंट के साथ, और कम्युनिटी फार्मेसीज में आपकी पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन होती है, जो जब पेशेंट का ये ट्रस्ट डेवलप हो जाए कि ये फार्मासिस्ट जो है ये अपने किसी प्रॉफिट के लिए जो है वो मुझे नहीं बता रहा, या अपने किसी प्रॉफिट या अपने रेवेन्यू के लिए मुझे नहीं बोल रहा, ये जो है वो मेरे अच्छे के लिए, मेरी भलाई के लिए, या मेरी इफेक्टिव यूज के लिए, मेरी केयर के लिए बात कर रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली अपने लिए तो अपने हाथ से कोई बुरी चीज नहीं परचेज करेगा, चाहे वो कहीं भी मिल रही हो। और एक डेवलप जो हम अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं उसका मेन रीजन यही होता है कि हमारी कम्युनिकेशन विद पेशेंट। बहुत सारे चैलेंजेस मुझे ऐसे भी होते हैं कम्युनिटी फार्मेसीज में, क्योंकि वो इज जस्ट लाइक अ रिटेल फार्मासिस्ट, तो उनको होता है कि बस आपको पास प्रिस्क्रिप्शन आई हैं, आप शॉपर में डालें और आप दे दें, और आप लोगों को तो सिर्फ जब यहाँ पे अपनी सेल करनी है, इस तरह के पॉइंट्स भी होते हैं। तो आपको क्या वो होता है कि अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है और आप उसको ऑल्टरनेट सजेस्ट कर रहे हैं, तो उनको पेशेंट का सवाल ये आता है कि क्योंकि आपके पास ये है तो ये अच्छी है, ये ब्रांड है तो ये ब्रांड अच्छा है। तो मैं हमेशा पेशेंट को ये कहती हूँ कि आप जो है वो इस डोज को, मेरा मेजर मेरा जो गोल है वो ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी इस डोज को स्किप ना करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है मेरे पास से लेने से तो आप कहीं और से उसे परचेज कर लें, बट मेरा गोल यही है, मैं ये चाहती हूँ कि आप सिर्फ इसकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से या ये की वजह से या इसकी शॉर्टेज की वजह से इसको स्किप ना करें इस मेडिसिन को। तो वो पेशेंट खुद ही वापस आता है और फिर आके जो है वो बोलता है कि यस आप दे दीजिए, ठीक है, मतलब अगर उस वो खुद सेटिस्फाई होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो हमारी स्किल है ना, जो की हमारी, और जो ट्रस्ट अगर पेशेंट को हम पे डेवलप हो जाए, फार्मासिस्ट पे, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे, तो फिर वो पेशेंट को आप जो भी गाइड करते हो, जो भी काउंसिल करते हो, वो उससे कभी भी रेसिस्ट नहीं करता। लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत, अगर आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन लेते साथ ही बोल दिया कि एजोमैक्स दिन में 2 दफा लिखी हुई है, 2 दफा तो 500 mg तो जाती नहीं है, ये तो गलत लिख दिया डॉक्टर ने। तो ये जो गलत लिख दिया है, जो 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 कुछ चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं हमारे, वो बहुत इम्प्रेशन मुझे लगता है पेशेंट्स के ऊपर करते हैं कि क्या आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं, डॉक्टर को या किसी चीज को भी। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि ये शायद कुछ इसमें गलत चीज हो गई है या ये इस तरह की डोज होती नहीं है, बट मैं खुद भी चेक कर लेती हूँ, मुझे भी कंफर्म नहीं है, मैं पता है मुझे कि वो सही चीज नहीं है, बट पेशेंट के सामने आप रिएक्ट कैसा कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। और उसका सारा जो रिएक्शन है, जो मतलब मैं अभी मुझे 5 years हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब जो मेरी स्किल, अब जो मैं पेशेंट डीलिंग मेरी इस तरह की हो गई है कि कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी ऑल्टरनेट हो, कहीं की भी प्रिस्क्रिप्शन हो, मैं पेशेंट से जो जिस तरह कम्युनिकेट करती हूँ कि वो
लेके ही जाता है मेडिसिन। वो कभी उसको ये इम्प्रेशन मुझसे नहीं गया, और मेरा जेन्युइन कंसर्न भी यही होता है कि आपकी डोज स्किप ना हो, आप जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि ये चीज़ ओवरऑल ही अगर जो है वो आप कहीं भी जाएँगे अच्छी जगह पे, हाँ लोकल मेडिकल स्टोर्स पे तो वो बेरीज़ोल्ड डायरेक्टली दे रहे होते हैं ना, 600 mg एक डोज लिए सही हो गए, वो कौन सी एक डोज से सही हो गए उनको नहीं पता। तो आप उनको ये सिर्फ गाइड कर दें, अगर हम अपना रोल हमारा ये भी बहुत है कि वो हमारी बात मानते या नहीं मानते, लेकिन हमने डिलीवर उनको किया या नहीं किया, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि 80% जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर ज़रूर इस चीज़ का इफ़ेक्ट जाता है अगर हम उनको चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, 20% कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको जो नहीं वो कर सकते, बट उन 20% की वज़ह से हम अपना रोल भी नहीं जो है वो उसपे भी पीछे नहीं हो सकते। हम काउंसल करना भी नहीं छोड़ सकते। हमारा जो गोल और ऑब्जेक्टिव है, रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स और एवरी मेडिसिन, जो 5 आर्स हम कहते हैं कि राइट ड्रग, राइट डोज़, राइट रूट, और कितने ज़्यादा मेडिकेशन एरर्स हो रहे हैं, क्योंकि फार्मेसीज़ पे डेफिनिटली एवरी टाइम फार्मासिस्ट नहीं अवेलेबल होता, फार्मेसी टेक्नीशियंस भी होते हैं, लेकिन एवरी टाइम नहीं होता, बट जो वो कुछ टाइम अपनी कम्युनिटी फार्मेसी पे या कहीं भी स्पेंड करता है, तो वहाँ के जो स्टाफ है उनके ऊपर वो उनको क्या एजुकेशन देता है, उनको क्या नॉलेज देता है, उनको क्या डिलीवर करता है, और उनके साथ जो है वो उनकी ट्रेनिंग्स किस तरह से करवाता है, ये भी बहुत है कि अगर एक फार्मासिस्ट कहीं पर है और वो मेरे पास अभी इंटर्नीज आए थे अल-खिदमत में, हमारा अभी अगेन दोबारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, रेजिडेंसी प्रोग्राम इंशाल्लाह। तो अभी तो रीसेंट ट्रेनीज आए थे, उन सबको मैंने जो है वो एक्सपोज़र दिया था डायरेक्टली विद पेशेंट्स, क्योंकि हमारे पास जो है वो हम इंटर्नीज को या ट्रेनीज को डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करने देते अपने सिस्टम से, और हमारी जो है वो कुछ पॉलिसीज भी होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, और अदर जो हमारे जो एंगेजमेंट्स होती हैं, उस वजह से इतना टाइम नहीं होता कि हम एक-एक इंटर्न को जो है वो डायरेक्टली कोई एरर हो जाए, या रिस्पॉन्सिबल जो है वहाँ पे शिफ्ट पे जो फार्मासिस्ट या इंचार्ज ही होता है, तो हम नहीं एक्सपोज़र दे पाते इतने दूसरी फार्मेसीज़ में। बट इस टाइम मैंने थोड़ा रिस्क लिया और अपने जो इंटर्न्स हैं उनको पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करने का भी जो है वो चांस दिया। उनको मैंने टॉपिक्स दिए कि वो मुझे ट्रेन करें और मेरे टेक्नीशियंस को ट्रेन करें, और जो है वो चीज़ों पे जो उनका एक्सपीरियंस है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे। तो ये नहीं मुझे लगता कि बिल्कुल भी मैटर करता है कि आपकी डेज़िग्नेशन क्या है। आप फार्मासिस्ट हो, आपने 5 इयर्स पढ़ा है, आप 3rd ईयर में भी पढ़ रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या चेंज लेके आते हो, और आप इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि आप जो है वो कितने लोगों में चेंज लेके आए हो, और कोई आपकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा। अगर कोई हमारी बात नहीं भी सुन रहा, तो हम उसको कहना तो नहीं बंद कर सकते। अगर कोई नहीं मान रहा और उसको खानी ही है डायरेक्टली सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही खानी है, तो हम निकाल के दे तो नहीं सकते कि हमसे नहीं लेगा तो कहीं और से ले लेगा। हमें उसको काउंसल करना है, हमें उसको एजुकेट करना है, हमें उसको बताना है कि हम आपकी केयर के लिए ये कर रहे हैं, हमें उसको ये चीज़ डिलीवर करनी है कि ये जो हम अगर इसका यूज़ या मिसयूज़ या ओवर यूज़ या क्या-क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं जो उसकी हेल्थ पे आ सकते हैं। तो डेफिनिटली फिर कोई भी पेशेंट खुद से तो ये नहीं करेगा कि वो जाके फिर इसका इर्रेशनल यूज़ या इनएप्रोप्रिएट यूज़ करे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस, यस, बोलें। मैम मैंने ये पूछना था, जैसे कि पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप मतलब इतना ज़्यादा फिजिशियन के पास जाके मतलब एंटीबायोटिक लेने का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम जैसे देखते भी हैं सोसाइटी में ही देखते हैं अपनी ये चीज़ कि बहुत कॉमनली है कि फॉर एग्जांपल फ्लू हुआ, कफ हुआ, या फिर मतलब उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स फ़ौरन जो है वो एंटीबायोटिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर पेशेंट यूज़ कर रहा होता है। तो आपके अकॉर्डिंग एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है इस सेल्फ मेडिकेशन को प्रिवेंट करने में? मतलब किस तरीके से, मतलब काउंसल करके, या किस तरीके से आप मतलब क्या बेस्ट वे है? सबसे पहले तो जो बेस्ट वे ये होता है कम्युनिटी फार्मेसीज में कि अब जो हम इस तरह से करते हैं कि हम अवेयरनेस ट्रेनिंग
कैंप्स रख लेते हैं। मेडिकल कैंप के नाम पे हम जो है वो एक एवरी वीक कोई इस तरह का सेशन रखते हैं जिसमें हम डायबिटीज की मेडिसिन के लिए नॉलेज, इंसुलिन किस तरह लगानी है उस पर नॉलेज, सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर या डिफरेंट जो हमारे हाईलाइटिंग टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर हम जो है वो एक कैंप की फॉर्म में, ट्रेनिंग तो नहीं क्योंकि सारे पेशेंट्स हैं तो वो मेडिकल कैंप में जरूर आते हैं और वहां पे हम उनको काउंसिल करते हैं। सेकेंडली जब हमारे पास काउंटर पे पेशेंट आता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के, वो मेडिसिन लेने आ रहा है, सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है, तो वहां पर हम उसको काउंसिल कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, उसको वही वाली बात है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो उसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर जो है ये बता सकते हैं कि अगर आप ये सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो ये आप जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी और इन फ्यूचर अपनी बॉडी को आप जो है वो किसी बड़े जो है वो डेंजर के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसको ना करें। अगर आप एक दफा डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेरे पास ऐसी भी प्रिस्क्रिप्शन आती हैं जो 10 ईयर 20 ईयर से कोई पेशेंट है वो फॉलोअप ही नहीं ले रहा, 6 मंथ्स की मेडिसिन, एवरी 6 मंथ्स वो मेडिसिन मेरे पास रीफिल होने के लिए प्रिस्क्रिप्शन आती है। और अभी रिसेंट आई थी तो मैंने काफी उनको काउंसिल करने की भी वो की कोशिश कि आप एक फॉलोअप कर लें, और मे बी कि आप जो है वो इस टाइम आपका ब्लड प्रेशर शुगर इस स्ट्रेंथ पे ना हो जो है वो जिसपे आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी। क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन मेरे हाथ में जब आई थी वो इस तरह से थी, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वो आई थी, 2 साल से तो वो आ रही है प्रिस्क्रिप्शन के, वो बस बिल्कुल खत्म थी, उसके ऊपर ना डोजेस समझ आ रही थी, वो पेपर बिल्कुल उनका जो है वो इतना बुरे, प्रिस्क्रिप्शन पेपर इतने बुरे हाल में था। तो मैंने फिर वो थे पेशेंट के नहीं हमें यही सूट कर गई है और हम नहीं जो है वो हमें बस यही सही लगती है और हम इससे सेटल्ड है, हमारा बीपी भी इससे नॉर्मल है, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी इससे नॉर्मल है, तो वो वही मेडिसिन उन्हें चाहिए थी, वही मल्टीविटामिन उन्हें लेनी थी। तो उनको फिर मैंने एक पेपर पे प्रॉपर तरीके से फिर उन्हीं मेडिसिन को, उनकी ब्लड प्रेशर और शुगर की मेडिसिन से उनको इस वजह से मैंने उनको सही से लिख के दिया कि मे बी हर एवरी टाइम मैं काउंटर पे अवेलेबल नहीं होती, कोई फार्मेसी टेक्नीशियन होता है और वो इतनी ज्यादा मुश्किल से पढ़ने में आ रही थी वो मेडिसिन कि कोई चीज उसमें से जो है वो गलत डिस्पेंस ना हो जाए, गलत जो है वो ना हो जाए। बट एवरी टाइम जब वो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आती है मुझे पता है कि वो जो है अंकल आंटी वो इतने रिजिड हैं कि वो नहीं सुनते, नहीं मानते, वो बोलते हैं कि नहीं बस हम इसी में कंफर्टेबल है। बट एवरी टाइम जब वो आते हैं मैं उनको रिपीटेड एक ही बात बोल रही होती हूँ कि आप इसको फॉलो अप करवा लें, आप इसका फॉलो अप करवा लें। मैं आप उनको चार्ट बना के मैंने उनको दिया है कि आप अपने इस पे रीडिंग्स मॉनिटर करें और आप जाके डॉक्टर को उससे जो है वो एक फॉलो अप करा लें। नहीं सुन रहा पेशेंट, इससे तो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा जो रोल है वो हमें तो प्ले करना है, हमें पेशेंट को बताना है कि ये जो है वो ये जो रूल्स हैं ये आपको फॉलो करने हैं अगर आप चाहते हैं अपनी हेल्थ को और बेटर करना। अगर वो पेशेंट नहीं सुन रहा तो जितनी दफा भी वो आते हैं वो भी अब उनको भी पता होता है कि ये एक ही बात बोलेंगी और मैं वो बोलती हूँ, मैं मुझे भी पता होता है कि वो नहीं सुनेंगे, फिर भी मैं बोलती हूँ और हर बार बोलती हूँ कि कभी तो इफेक्ट होगा, कभी तो उस चीज को शायद वो सीरियस लेंगे यार, अब डॉक्टर को हमें दिखा के इसको रिन्यू कराना चाहिए। तो इररेशनल यूज सिर्फ एंटीबायोटिक्स का नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास, हम कम्युनिटी फार्मेसीज में तो बहुत ऐसी मेडिसिन हैं जो सेल्फ मेडिकेशंस हैं जो अपनी मर्जी से अच्छा ये भी दे दें, और वो मेडिसिन को अब विंडो शॉपिंग की तरह भी कुछ लोग ले रहे होते हैं कि ये मल्टी वाइटामिन हैं या कोई भी है, उनको उनके लेवल्स नहीं पता कि विटामिन डी लेवल क्या है, क्या विटामिन ई उनको जरूरत है भी या नहीं है, बस कौन सी अच्छी है, मतलब एक बहुत अजीब सा मुझे वर्ड लगता है कि सबसे अच्छी कौन सी है। तो मैं देखिए मेडिसिन हैं और मेडिसिन किसी चीज के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, इंडिकेट की जाती हैं, तो इसमें सबसे अच्छी वाला रोल कैसे आ गया, और ये कोई मार्ट की तरह जिस तरह से मेडिसिन ली जा रही होती हैं लोग ले रहे हैं और स्विच कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कि शुगर की कोई बहुत अच्छी मेडिसिन बता दें, शुगर नहीं मैनेज हो रही है, नहीं, आप डॉक्टर के पास बीपी की मेडिसिन मेरी जो है वो एम्लोडोपिन नहीं एडजस्ट कर पा रही तो आप कोई और चेंज कर दें, मैं चेंज नहीं कर सकती, आप उसको जो है वो आप जो है फिजिशियन के पास जाएंगे, आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। तो पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन खुद इसलिए भी कर लेते हैं कि वो इतने ज्यादा जो है वो वन विंडो सॉल्यूशन चाहते हैं कि वो अगर एक जगह पे एक फार्मेसी से आ रहे हैं तो वो फार्मासिस्ट से प्रिस्क्राइब भी करवा लें, वहीं से उनको मेडिसिन भी मिल जाए। तो ये भी एक फार्मासिस्ट का रोल है कि बहुत इंपॉर्टेंट कि वो उस पेशेंट को ये गाइड करे कि वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन। अगर कोई आंखों में ड्राइनेस हो रही है कोई भी ड्रॉप दे दें, मतलब क्यूरिन ड्रॉप का एक बहुत बहुत केस मेरे उसमें हुआ था
के टेक्नीशियन ने खुद ही मेरे मॉर्निंग में वो क्यूरिन ड्रॉप्स था वो दे दिया कि उनको इचिंग हो रही है। और मैं खुद भी वो टेक्नीशियन का जब वो बाद में केस हुआ कि उनको टैकीकार्डिया हो गया, क्योंकि आई डायरेक्ट ऑप्थेल्मिक जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा होता है और उसमें कोई भी रिएक्शन हो सकता है। हर पेशेंट की बॉडी हर तरीके से डिफरेंट रिएक्ट करती है। जरूरी नहीं होता कि पैराडॉल का इफेक्ट एक पेशेंट पे कुछ होता है तो दूसरे पेशेंट पे अलग भी हो सकता है। उसको किसी चीज से एलर्जी हो सकती है, किसी एक्सिपेंट से एलर्जी हो सकती है, तो हम नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑल्टरनेट सजेस्ट कर सकते हैं, सेम जेनरिक के डिफरेंट ब्रांड्स बता सकते हैं, लेकिन हम कोई भी नॉट इवन अ माइनर मेडिसिन हम नहीं प्रिस्क्राइब करते। हमें पता होता है कि क्या किसके लिए इंडिकेटेड है, लेकिन फिर भी मेरे पास पेशेंट आ जाए और वो आप कुछ भी बता दें, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, आप बता दें अगर कुछ होगा तो कोई मसला, आप मैंने नो आई कैन नॉट प्रिस्क्राइब। आप रिस्क लें तो मैं आपकी लाइफ भी रिस्क में नहीं डाल सकती। ये तो आपको फिजिशियन को ये काउंसिल भी हमें करना है कि ये फिजिशियन के पास आप जाएं प्रॉपर, उससे मेडिसिन लें। हम अगर सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन के साथ साथ ये प्रिस्क्रिप्शन जो फार्मासिस्ट तो नहीं खैर, लेकिन जो लोकल मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो कुछ भी दे रहे होते हैं कि वो ये एक मसला हुआ था और उस मेडिकल स्टोर पे गया तो उस बच्चे ने उस लड़के ने ये दे दिया। क्या दे दिया? उस स्टेरॉइड्स देती है। स्टेरॉइड तो आपके हर मसलों को सप्रेस कर देगा ना, वो तो इम्यून सप्रेसेंट है, तो फिर तो वो तो हर मसला ही हल हो जाएगा। तो ये वाली चीजों को भी हमें गाइड करना है कि इसकी जगह ये ले लें। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑल्टरनेट सजेस्ट कर सकते हैं जेनरिक्स के ऊपर। हम थेराप्यूटिक कोई अलग से मेडिसिन नहीं बता सकते। हम नहीं बोल सकते कि आप जो है वो एरिथ्रोमाइसिन नहीं है तो आप एजिथ्रोमाइसिन ले लें, नो। हम एजोमैक्स के डिफरेंट ब्रांड बता सकते हैं कि एजोमैक्स नहीं है तो आप जेट्रो ले लें, बट एजिथ्रो नहीं है तो एरिथ्रो ले लें, ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें पता हो तब भी नहीं कर सकते। पेशेंट बहुत इंसिस्ट करते हैं आके कि आप खुद बता दें, उन्हें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ये कंडीशन है, स्किन रैशेज हो रहे हैं, आप देख लें, आप बता दें इस पे क्या यूज करना है, नो। ना ही टॉपिकल कोई हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप टॉपिकल ये लगा लें, आप ये जो है वो सिर्फ क्रीम कोई सजेस्ट कर दें, नो वेज, हम ये नहीं कर सकते। बिकॉज इस वजह से क्योंकि पेशेंट जो है वो मैम उसकी मेरा हिस्ट्री एक क्या है। क्वेश्चन है। जी जी। मैम कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एग्जैक्ट डेज के लिए अगर कोर्स दिया जाए तो फिर वो कुछ दिनों में अगर खुद को बेटर फील करते हैं तो वो कोर्स छोड़ देते हैं। तो उस हवाले से एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमारा क्या रोल होता है? आपका क्वेश्चन ये है कि वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते एंटीबायोटिक का, ऐसे ही है? जी जी मैम। हाँ, तो वो अगर अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते तो हमें उन्हें एंटीबायोटिक के जो डेज हैं उनको देते हुए काउंसिल करना चाहिए कि अगर आप किस वजह से अगर डोज कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो पहले तो वो डोज कंप्लीट कैसे कर सकते हैं उस कोर्स को, उसकी पॉसिबिलिटीज हमें पहले जो 3-4 पॉइंट्स हैं बता दें कि आप को टाइमली लेंगे। अगर आपसे स्किप हो जाती है शुरू के 3 डेज 5 डेज का कोर्स है तो 3 डेज जो आप ले रहे हैं उसमें से अगर आपने कोई एक भी डोज मिस करी तो फिर आप डे 1 से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर फोर्थ डे पे अगर आप कोई डोज मिस कर देते हैं, कुछ पेशेंट की ओके अब भूल गए, अब तो अब 5 डे नहीं है तो फिर अब तो छोड़ देते हैं क्योंकि अब तो डोज स्किप हो गई, अब तो इसका कोई इफेक्टिव भी नहीं होगा। तो आज बात कम्युनिकेट तक हुई भी होती है कि जो है वो एंटीबायोटिक अगर हमने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। तो फिर तो जब एक डोज रहने की सारी ही रहने देते हैं। लेकिन अगर हम उनको पूरी बात कम्युनिकेट करें कि अगर आपका 7 डेज का या 5 डेज का कोर्स है तो स्टार्टिंग के जो 3 डेज हैं वो आपको टाइमिंग्स का और अपनी डोज का बहुत ख्याल रखना है। आपको एग्जैक्ट टाइम पे लेना है। उसका तरीका ये है कि आप अलार्म लगा के लें अगर आप इफेक्टिव इसका यूज जो है इफेक्ट चाहते हैं तो वो आप अलार्म लगाएं। इसको उसको हल नहीं पता होता ना पेशेंट को कि अच्छा ये तो टाइम है, हम भी भूल जाते हैं। मैं अपनी एंटीबायोटिक्स भी अलार्म लगा के लेती हूँ तो हम भी भूल जाते हैं कि हम जो है वो उसको कैसे ले, इतनी सारी जो है मसरूफियात में। तो उसको पहले तो हम हल ही बता दें, जब डिस्पेंस करते टाइम ही अगर उसको 2-3 ऐसे काउंसिल पॉइंट बता दें जो उसको मुश्किल भी ना लगे और वो इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी आसान हो। क्योंकि आप इसको अगर 3 डेज में आपने कंप्लीट कर लिया, 4th डे आपकी कोई डोज मिस हो गई है तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कर लें। लेकिन अगर हाँ आपने शुरू के 3 डेज के अंदर ही कोई डोज मिस कर दिए तो फिर देन अगेन आप डे 1 से स्टार्ट करें। तो ये कुछ काउंसलिंग पॉइंट पेशेंट को असल में ना पेशेंट वन विंडो सॉल्यूशन से आसानी बहुत चाहता है कि उसको अच्छा अगर कोर्स कंप्लीट करना है, भूल गए तो क्या करें, कैसे करें।
तो ये उसके बहुत सारे सवाल होते हैं कि नहीं याद रहता, फिर क्या करे, तो अलार्म लगा लें। तो ये हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस से, आप लोग भी जब फील्ड के अंदर और आओगे, काम करोगे, तो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका फिर क्या सॉल्यूशन है। अगर ये पॉइंट्स हम पहले से करें उस पेशेंट को कि कोर्स कंप्लीट करने का तरीकाकार क्या है, अगर कुछ मिस हो रहा है तो आपका चैलेंज उस पेशेंट का क्या आ रहा है उसको पता हो कि नेक्स्ट टाइम कम्युनिटी फार्मेसी में तो वही कम्युनिटी में लोग रहते हैं ना। तो मैं तो जिस शिफ्ट में होती हूँ तो मॉर्निंग में भी वो आ रहे होते हैं, इवनिंग में भी आ रहे होते हैं, दिन में 3 टाइम भी वही पेशेंट आ रहे होते हैं, उसी कम्युनिटी के पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आके अगर बताए कि मैं लास्ट टाइम कोर्स कंप्लीट नहीं कर सका था, तो आप उससे बात करें, हिस्ट्री लें, कम्युनिकेट करें कि क्यों नहीं कर सके, क्या चैलेंज है आपके लिए। अगर चैलेंज टाइम का है और आपको याद नहीं रहता तो फिर आप इसको अलार्म के थ्रू करें। अगर आपका कंप्लायंस का इशू है और आपकी 250 की पीटी डोज है तो आप 501 सा डे ले लें। इस तरह की जो पॉइंट्स होते हैं वो फिर हम जो है वो पेशेंट को कम्युनिकेट करते हैं, ताकि हम इसके यूज को, एंटीबायोटिक को रैशनल बना सकें और उसका इफेक्ट जो है पेशेंट तक स्पेसिफिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वो पहुंच सके। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे मतलब पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे मतलब मैंने देखा ये चीज़ कि अगर एक पेशेंट फिजिशियन के पास जाता है तो फिजिशियन भी डायरेक्टली मतलब मोस्टली जो है वो भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं, मतलब किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल एंटीवायरल या कोई एंटीफंगल केस है या कोई भी इन्फेक्शन है तो वो भी एंटीबायोटिक ही प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। आई डोंट नो कि उनका कोई प्रॉफिट बेस्ड पर्पस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडस्ट्री से भी लिंक होता है फिजिशियंस का या डॉक्टर्स का। तो फिर तो ये चीज़ भी मतलब फिजिशियन भी इन्वॉल्व्ड है इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डेवलप करने में मतलब पेशेंट्स के अंदर। तो फिर इस चीज़ को हम कैसे इसमें हम तो इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं क्या? मतलब हम फिर इसमें क्या कर सकते हैं? और प्रिस्क्रिप्शन ही एंटीबायोटिक आ रही है, डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स, जैसे आपने कहा कि एंटीवायरल है तो आप समझा सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं पेशेंट को, तो इसमें हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं? और इसकी कंफर्मेशन में मेरे पास भी एक सवाल है कि मेरी दोस्त ने इंटर्नशिप की थी हॉस्पिटल में, तो जो है वो बता रही थी कि रैशनली यूज हो रहा है एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक जो लास्ट स्टेज पे यूज की जाती है। तो इसमें फार्मासिस्ट से पहले डॉक्टर्स को समझाना चाहिए कि पहले अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो है ना यूज करें। हेलो। हाँ ठीक है, कंप्लीट करें क्वेश्चन। तो ऐसे हम हमें काउंसिल करने से पहले तो ये डॉक्टर्स को समझनी चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ। लास्ट लाइन जो है डोज दे देते हैं वो फॉरन एंटीबायोटिक की। हाँ, इसमें जो डॉक्टर्स हैं, मैं एक्चुअली एज अ क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर भी वर्क करती हूँ, तो मेरे डॉक्टर्स से भी काफी इस चीज पर डिस्कशन हुई है। तो डॉक्टर्स के लिए भी यही है कि अगर हम पेशेंट को पहली प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं अगर कोई एंटीबायोटिक नहीं लिखी तो वो पेशेंट क्लिनिक से बाहर जाके वापस आ जाता है कि इसमें आपने कोई एंटीबायोटिक तो लिखी ही नहीं। तो नहीं, ये तो फिर डॉक्टर ही अच्छा नहीं है। सेकंड टाइम पेशेंट मेरे पास आता ही नहीं है, तो मैंने कहा इसके लिए ये तो वो आपके साथ ये कर रहा है, कोई सेकंड टाइम आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन आप तो उसको काउंसिल, पेशेंट जो है वो डॉक्टर के साथ भी इस चीज के ऊपर, अगर पेशेंट को कुछ इस तरह के फॉरेन इफेक्ट चाहिए, फॉरेन वो चाहिए, तो डॉक्टर का माइंडसेट ये है, क्योंकि अब जो है वो जाहिर है फार्मा वालों का भी उनका होता है, इस चीज में कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन डॉक्टर के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि पेशेंट जो है ना वो खुद इतना ज्यादा रिलेक्टेंट हो चुका है अब इस चीज के ऊपर भी कि उसको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, 2 दिन में सही हो जाए, 2 दिन में कोई दवा सही कर दे। अब वो बेरिजोल के एडमिट वो जो एडमिट पेशेंट थे उन लोग को ड्रिप्स दे रहे हैं एंटीबायोटिक की, और जो बच्चे हैं जिनको भी मतलब लाइट फीवर है उन तक एंटीबायोटिक जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ये जो हॉस्पिटल्स हैं। और मैं अब यही बता रही हूँ कि बेरिजोल जो रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक है उसके अब सीरप्स फॉर्म में भी अवेलेबल होना शुरू हो गई है। मेजर एक तो रीजन सबसे पहले ये है कि जो हमारे पास बच्चे जो हैं, इन्फेंट्स भी हैं, उनको भी हम डायरेक्टली जो है वो नोविडेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे जो है वो दे रहे होते हैं या सेफेक्सिन दे रहे होते हैं। तो जब वो 2 to 3 और 4-5 ईयर्स तक पहुंचते हैं तो वो उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर चुके होते हैं। मेजरली हमारे पास जितने भी केसेस हॉस्पिटल्स में भी आते हैं या डॉक्टर्स के पास भी आते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो
इतनी ज्यादा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट उनके अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है, क्योंकि रीजन ये है उसका कि अगर कोई बच्चा सबसे बड़ा जो है घर में 5-6 साल का, और उसको कभी डॉक्टर ने उसकी डायरिया के लिए उसके जो है वो सेफेक्सिम लिख दी, नोविडेट लिख दी, कोई एंटीबायोटिक लिख दी, फ्लैजिल लिख दिया, या डोमल कोई सिरप लिख दिया, एक प्रिस्क्रिप्शन, तो वो प्रिस्क्रिप्शन फिर वो उस खानदान के सारे बच्चों में वही प्रिस्क्रिप्शन पास आउट हो जाती है कि भाई अब ये कंडीशन है तो इसके ऊपर यही मेडिसिन दी थी इसको और यही इफेक्टिव है। तो ये जो विद इन फैमिलीज और जो है वो सारे सिबलिंग्स के अंदर एक ही प्रिस्क्रिप्शन चल रही होती है, ये स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे कि फिजिशियन तक तो वो चीज बहुत बाद में गई नहीं ना, मतलब फिजिशियन ने तो किसी एक को अगर प्रिस्क्राइब करी किसी कंडीशन के ऊपर, तो बाकी जो है वो सेल्फ मेडिसिन अगर कोई पेशेंट शुरू कर रहा है और वो ना फार्मासिस्ट के पास गया है ना किसी उसके पास गया, उसने कहीं भी वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाई, किसी भी मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन ले ली, तो अब जब वो किसी केस के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो फिर वो मल्टी ड्रग वो उस ड्रग से तो रेसिस्टेंट हो चुका है, तो डेफिनेटली फिर उसको जो है वो कोई हाई एंटीबायोटिक, हाई ड्रग, हाई क्लास ऑफ मेडिकेशन देनी पड़ती है। ये डॉक्टर्स का चैलेंज है कि हमारे पास जब आते हैं जिन केसेस में, ऑल दो तो नॉर्मल केसेस के अंदर तो खुद ही एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, मैं मेरी जो अभी ब्रांच एक हैदराबाद ब्रांच है वो तो बिल्कुल जो है वो बराबर में है सिटी स्कूल के, तो वहाँ की जो पेरेंट्स आते हैं तो वो तो कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह के बगैर ही आके इतने आसानी से बोल रहे होते हैं कि सेफिगेट चाहिए, सेफिक्सिन चाहिए, तो वाज लाइक कि किस लिए चाहिए, उसकी प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? नहीं वो हम रखते हैं। मैंने कहा आप रखती हैं तो किस इन्फेक्शन के लिए रखती हैं, किस चीज के लिए रखती हैं? ये कोई पैनाडॉल तो फिर भी नहीं है, पैनाडॉल को भी इस तरह नहीं देना चाहिए। तो ये इतना कॉमन है, हो चुका है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि डॉक्टर और फिजिशियन भी, हेल्थ के प्रोफेशनल भी हमारी तरह, मैं सबकी बात नहीं कर रही फिर भी, लेकिन 80% फिजिशियन भी जो है वो इस चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं कि उनके पास जब केस आता है, उनके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट तो होते ही हैं। वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन खुद खा के आ रहे हैं तो फिर डॉक्टर उसको क्या प्रिस्क्राइब करेगा? वो जब डॉक्टर के पास अब पेशेंट्स जा रहे हैं फिजिशियन के पास, तो वो मेजरली अपनी सेल्फ ट्रीटमेंट के बाद ही उसके पास जा रहे होते हैं, तो वो बेचारे, उनको चैलेंज ये आता है कि अब हम क्या प्रिस्क्राइब करें। मतलब वो नोविडेट खा के अगर कोई पेशेंट फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक खा के मेरे पास आएगा तो देन वो क्या सब उसको दे सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज सबके लिए, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए है कि एंटीबायोटिक का जो इनएप्रोप्रिएट यूज है उसके लिए हमें क्या जो है वो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना चाहिए, हमें मेडिकल कैंप्स करने चाहिए जहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट जो है वो इंटर्न्स हैं, 3rd ईयर 4th ईयर्स के वॉलंटियर करें और ट्रेनिंग दें। जो हमारे पास ले मैन है जिसको कुछ नहीं पता, उसको भी बैठा के अगर हम ट्रेन करना शुरू करें अपनी कम्युनिटी सेटअप्स के अंदर, इस तरह के कैंप्स करें। और अब जितनी कम्युनिटी फार्मेसीज हैं और डेवलप हो रही है कराची में, वो ये चीज पे वर्क कर रही हैं, वो इसमें मेडिकल कैंप्स कर रही हैं और जो है वो अपनी मैक्सिमम कोशिश कर रही हैं कि वो यहाँ अब जो है वो काउंसलिंग जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स को समझाना, फार्मासिस्ट को समझाना, नर्सिंग को समझाना तक नहीं रही है, क्योंकि अब इरेशनल यूज के अंदर एक इटसेल्फ एक इंडिविजुअल, एक पेशेंट का बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है कि वो अब ना फिजिशियन के पास भी नहीं जाना चाहता। मैं एक मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर में, मेरे पास भी है, मेरे पास लैब्स भी है और मेरे पास फार्मेसी भी है, बट पेशेंट जो है वो क्लिनिक्स की तरफ जाने नहीं चाहता। उसको होता है कि यही से उसको कुछ मिल जाए ऐसी मेडिसिन, और अगर नहीं मिल रहा तो फिर वो चैट जीपीटी और गूगल से सर्च करके बोलता है कि ये दे दें, ये बता रहे हैं, गूगल तो ये बता रहे हैं। लिटरली पेशेंट्स आके इस तरह की बात कर रहे होते हैं। तो इसके लिए असल में जरूरत फिजिशियन, फार्मासिस्ट और हम सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ये कि हम मैक्सिमम अपने पेशेंट्स को जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी फार्मेसी में, कम्युनिटीज को, हॉस्पिटल फार्मेसीज में जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे तब्बा में अब डिस्पेंसिंग की काउंसलिंग अलग होती है, डिस्चार्ज मेडिसिन की भी काउंसलिंग होती है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद जा रहा है, फार्मेसी से जाने के बाद भी उसकी एक काउंसलिंग है। तो इन चीजों पे हमें फोकस करना है। अब जो है वो अगर हम पेशेंट को या किसी को भी, तो वो हम अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग्स के थ्रू जो है वो हमें उसे गाइड करना है, क्योंकि अब जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, वो भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा, उनके लिए भी चैलेंजिंग है कि अब पेशेंट जो है वो इतनी ज्यादा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट डेवलप करके खुद हमारे पास आ रहा है कि अब जो
एंटीबायोटिक बेरिसोल इतनी कॉमन हो चुकी है, इतनी कॉमन, ज्यादा कॉमन हो चुकी है। 600 BD की डोज एवरी इंडिविजुअल को जा रही है, एवरी एज ग्रुप पे जा रही है, सीरम्स बन रहे हैं उसके ऊपर। तो ये क्योंकि अगर पेशेंट, मैम मेरा फिजिशियन एक को भी पता है। क्वेश्चन है। जी जी बोले। मैम कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनको मतलब जो भी मतलब मर्ज बताओ, जैसे बताया कि बुखार है तो फिर वो पेनाडॉल दे देते हैं, और उन्हें पता हो कि फ्लू है तो फिर मैम वो फ्लू की दे देते हैं। तो मैम ऐसे ना करके ये रेशनल डेवलप नहीं होगा? सॉरी मैं बात नहीं समझी आपकी, दोबारा रिपीट करें। मैम कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनको मतलब जो भी पेशेंट बताए कि बुखार है तो वो पेनाडॉल दे देते हैं, ठीक है, और अगर वो कहें कि डायरिया है तो फिर वो मतलब फ्लैजेल वगैरह दे देते हैं, ठीक है। मतलब वो बोलते ही नहीं है कि ये टेस्ट करवा लो या वो टेस्ट वगैरह करवा लो, कुछ भी नहीं, बस ड्रग्स दे देते हैं लिख के, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। और उसमें फिर हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है कि मतलब उनको हम कैसे कहें कि पहले टेस्ट करवा लो उसके बाद ये ड्रग्स वगैरह यूज करें? हाँ, वैसे अब मेजरली डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे पहले जो है वो सीबीसी ही प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, सीबीसी या कोई टेस्ट ही बता रहे होते हैं कि इसको चेक करें। बट हाँ, पेशेंट अगर बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा होता है करे तो वो पैराडोल उसको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। मेजर मेजर अगर बात करूं तो एवरी डॉक्टर, क्योंकि अब पेशेंट्स की ये भी कंप्लेन आती है कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो टेस्ट लिख के दे देगा, तो उनको ये भी बड़ा चैलेंज है कि फिर वो हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस वहां चली जाएगी, पहले डॉक्टर की फीस दो फिर टेस्ट कराओ, तो देन वो डायरेक्टली जो एक चेन है उसको क्रॉस करके डायरेक्ट फार्मासिस्ट के पास आ जाते हैं। कि फार्मासिस्ट के पास आके बोलेंगे कि भाई आप हमें बता दें। मैं आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैं डेली जो चीजें फेस करती हूँ, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी लेक्चर्स के ड्यूरेशन में सोचती थी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कोई आप क्यों करेगा कोई पेशेंट आके ऐसी बात, मतलब हम नॉर्मल इंडिविजुअल आके क्यों डायरेक्टली फार्मेसी से आके मेडिसिन मांगेगा, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। फिजिशियन है, फिजिशियन के बाद आपके लैब्स हैं, आपकी रिपोर्ट्स हैं, और उसके बाद फिर आप जो है वो फार्मेसी मेडिसिन लेने आते हो तो डायरेक्टली। बट डेली बेसिस पे मैं पेशेंट्स को ये, अगर मेरी डे के अंदर 200 to 300 पेशेंट्स हैं तो मैं उसमें से 150 पेशेंट्स को, 50% पेशेंट्स को ये कन्विंस कर रही होती हूँ, उनको ये काउंसिल कर रही होती हूँ कि आप इसके लिए या तो डायरेक्टली कोई मेडिसिन तो हम आपको प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, और आपको इसके लिए पहले फिजिशियन से पास जाना होगा। अगर आपको बहुत डाउट है तो आप इसके लिए सीबीसी करवाएं अपना, और आप देखें कि आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन है भी या नहीं। और मेजर जो मेरा एक हमारा चैलेंज है ना। जी जी पूछे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली तौर पे रेजिस्ट हो चुका है एंटीबायोटिक से, मींस के लास्ट स्टेज तक वो सेल्फ मेडिकेशन लेता रहा है, फिर उसे ख्याल आया कि अब मेरे ऊपर कोई भी दवाई असर ही नहीं कर रही, तो डॉक्टर के पास जाता है। सो आपने बताया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर? फ्यूचर ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम्स हैं, हमारी जो इम्यूनिटीज हैं, जो जो उसकी जो नेचुरल जो फाइटिंग, जो हमारी WBCs हैं, RBCs हैं, जो हमारे नेचुरल सेल्स हैं, जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में मैकेनिज्म्स रखे हैं, वो तो हम गुड और बैड बैक्टीरिया, इतनी एंटीबायोटिक्स लेके जो हमारी हेल्थी बैक्टीरिया भी हैं उनको तो हम किल कर चुके हैं। सेकंड, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ये बस ये नजर आता है अब जो फ्यूचर जो हमारे हैं कि वो अब ओरल से ज्यादा आईवी पे जाते हैं, कि ओरल मेडिसिन, ओरल जो एंटीबायोटिक्स का क्या अब पैटर्न डॉक्टर्स ने बना लिया है, वो भी यही बनाया है कि आप जो है वो लॉन्ग टर्म वो मेडिसिन जो है वो सबसे लास्ट रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक जिसकी रेजिस्टेंट डेवलप हो गई है और जो अब इफेक्ट करेगी तो वही करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी, तो वो प्रोलॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको दे देते हैं कि वो बेचारा जो पेशेंट है वो इन द एंड इतनी कॉस्ट कोई नहीं बेयर कर पाता, कि वो इतना एक्सपेंसिव ब्रांड है लिंजोलिट 600 mg जो मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जा रहा है हर पेशेंट को, और उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 21 days, उसको फिर नहीं इफेक्ट कर रहा है, इसको और इंक्रीज कर दें और कुछ नहीं हो रहा तो वो बेचारा फिर वो उसकी वर्स्ट कंडीशन होती है और वो उसको फिर आप जो है वो उसके ऊपर दे रहे होते हो, किस पे, आईवी पे दे रहे होते हो कि आईवी जो है वो थोड़ा और अच्छा इफेक्ट कर लेगा। इसके अलावा कोई फ्यूचर, इसका फ्यूचर सिर्फ ये कि हम अपनी जो कम्युनिटीज, अपने जो
जो पेशेंट हैं उनको बेस्ट काउंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, अब मैं सिर्फ ये बताऊं कि सिर्फ अब ये एशिया का इशू नहीं रहा है, बल्कि और भी कंट्रीज में अब ये बहुत जो है वो मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और अगर अब्रॉड की हम बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, और वो पहले इस तरह होता था कि अपनी 6 मंथ्स की मेडिसिन में सिर्फ एंटीबायोटिक्स लेके जाते थे, बट अब वो कहते हैं कि वहां भी हमें मिल जाती है। वहां भी जो है वो मतलब पहले चैलेंज था कि ऑगमेंटिन के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए वहां पर और ये, लेकिन अब जो है मुझे 2-3 पेशेंट्स ने आके बताया कि नहीं, अब वहां भी जो है वो हम ले लेते हैं, मिल जाती है हमें मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक। तो मैं इस पे बड़ा शॉक हुई कि ये अब जो इशू है वो सिर्फ एशियन कंट्रीज का नहीं, वर्ल्ड वाइड ये इशू है कि इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन। अगर आप पे रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हैं आपको, कि आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेके, तो आप इंडिया और पाकिस्तान से उसको जो है वो 6 मंथ्स की लेके जा रहे हो। आप इमिग्रेशन में वहां पर जो है वो कस्टम में उसको जो है वो एक्स्ट्रा अपने, मतलब आप कोई कोई बिलीव नहीं करेगा कि कोई पेशेंट खुद, जिसको एक चीज उसके अच्छे के लिए मना करी जा रही है और वो उसको स्टोर करके लेके जा रहा है, क्योंकि उसका उसकी जो बैक पे उसकी काउंसलिंग सही नहीं हुई थी। अब जो कम्युनिटी फार्मेसीज का, अब जो हमारा पास हर फार्मेसी के ऊपर फार्मासिस्ट अवेलेबल है। अगर हम आज से 10 साल पहले देखते हैं तो कम्युनिटी फार्मेसी का कोई ऐसा रोल नहीं था। मेरी अपनी फ्रेंड्स में से मैं अगर बताऊं तो मैं आई एम द ओनली वन जो कम्युनिटी फार्मेसी में। बाकी मेरी सारे कोलीग्स फ्रेंड्स कोई कम्युनिटी फार्मेसी में को चूज ही नहीं कर रहा था एज अ करियर, और मैंने इसके अंदर जितना एंजॉय करके इस प्रोफेशन के में काम किया है और मुझे ग्रोथ मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल फार्मेसी और सेटअप में होती तो शायद मैं इतना ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाती, मैं शायद इस डेजिग्नेशन पे भी नहीं हो पाती वहां पर के चैलेंजेस पे। बट जो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके इंटरेक्शंस हैं, जो आपका रोल है, वो इतना इम्पोर्टेंट है और इतना इफेक्टिव है। और जब आपको पेशेंट के ऊपर इफेक्ट नजर आता है, वो आके बताता है कि अब पेशेंट जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन जो है वो एक अंकल पता नहीं कितने अरसों से जो है वो चाय के साथ ले रहे हैं, दूध के साथ ले रहे हैं, और उनको जब मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वीक बताया है कि ये आप जो है वो फ्लोरोक्यूनेंसिस और कैल्शियम के साथ नहीं लीजिएगा, इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाती, तो ये इसका इफेक्ट नहीं आएगा। सो ही वॉज सरप्राइज कि मैं तो इसको दूध के साथ लेता हूँ, मुझे तो पहली दफा पता चला है। तो वो एक छोटा सा चेंज भी, और जो पेशेंट का जो थैंकफुल जो आपका तरफ नेचर होता है, और नेक्स्ट टाइम आके वर्क आप कहीं भी बिजी हो वेट करता है कि इस फार्मेसिस्ट से मेडिसिन लेनी है। ये मुझे लगता है ये जो रिवॉर्ड होता है कम्युनिटी फार्मेसिस्ट का, तो मुझे लगता है कि ये अगर आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अब एक 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 पेशेंट के लाइफ में भी अगर आप अपनी काउंसलिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से कोई चेंज लेके आ रहे हैं, तो इससे बड़ा विन कोई नहीं है, एक फार्मासिस्ट के लिए, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। 4 लोग अगर आपकी बात नहीं मान रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5वें को काउंसिल ही नहीं करेंगे। आपको रिपीटेडली अपना रोल प्ले करना है, आपको फिजिशियन से इंटरेक्ट करना है, आपको फिजिशियन से कांटेक्ट कर जो है वो बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, आपको उसके चैलेंजेस को, फिजिशियन को क्या फेस कर रहा है ये इसको कैटर करना है, इसको देखना है क्या क्या डोज में अवेलेबल है, कंप्लाइंस में क्या इशू आ रहा है, प्रिस्क्राइब करने में वहाँ क्या चैलेंज आ रहा है, नहीं पता होता फॉर्मुलरी। जो फिजिशियंस होते हैं वो हमें कहते हैं कि आप फॉर्मुलरी दें, हमें नहीं पता ये किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है। कुछ पेशेंट, कुछ फिजिशियंस होते हैं जो ये, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर को खत्म करना है पेशेंट्स के साथ भी, फिजिशियन के साथ भी, तभी हम एक एंटीबायोटिक्स को और दूसरी मेडिसिन को अप्रोप्रिएट तरीके से यूज कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम Uh, मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर नोट किया है कि जो हमारी फिजिशियन है वो जो हमारी रेकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक्स, मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि जो अपर जीआईटी के लिए होती हैं उनको लोअर जीआईटी में गा रहे होते हैं, और जो लोअर के लिए होते हैं उनको अपर जीआईटी में गा रहे होते हैं। और अगर हम कम्युनिटी फार्मेसी पे अगर पेशेंट को गाइड करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट आगे से रिस्पॉन्स करते हैं कि हमें तो फिजिशियन ने यही रेकमेंड किया तो हम तो यही लेंगे। मतलब इसमें तो सबसे बड़ा रोल तो जो हमारे फिजिशियंस हैं या डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस में वो उनको रजिस्ट करवा रहे हैं ना, कि इस तरह से तो जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं मेडिसिन वो पहले ही रजिस्ट हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें हम अगर लोअर जीआईटी वाली पहले ही, मतलब हाँ, चाहिए हमें अपर के लिए तो हम दें उनको लोअर जीआईटी के रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या रोल हो सकता है, हम कैसे पेशेंट को डील करें?
इसमें हमारा रोल ये हो सकता है कि सबसे पहले तो अगर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डॉक्टर का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, होता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर यूजुअली, तो हम बात कर लें फिजिशियन से, अपने पास से कॉल करके उनसे कम्युनिकेट कर लेंगे सर इसलिए प्रिस्क्राइब किया। आई थिंक इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने ये गलत प्रिस्क्राइब कर दिया, इस ऑफर के लिए नहीं लोअर नो। इसका आई थिंक मुझे जहां तक ऐसा लगता है या मैंने पढ़ा है या मेरी नॉलेज में है कि इसके लिए होती है, तो कैन यू करेक्ट मी प्लीज कि शायद आपसे भी और अच्छी बात है कि नॉलेज मिल जाएगी या मैं और सीख सकता हूँ या सकती हूँ कि आप मुझे थोड़ा गाइड कर दें कि या कि ये वाकई इसकी सेकंड इंडिकेशन ये भी है कि इस तरह भी जाता है, तो फिर वो डॉक्टर जो है वो उसके ऊपर आपको गाइड करेगा। लेकिन सेकेंडली अगर आप ये नहीं कि अगर उसको आपको पता है डेफिनेटली अगर आपके पास कोई कांटेक्ट भी नहीं है और उस पेशेंट का भी, तो आप उस पेशेंट को कहेंगे कि आप अभी फिलहाल ये मेडिसिन हम आपको या मैं आपको अभी डिस्पेंस नहीं कर रहा, आप इस सेकंड एक दफा दोबारा डॉक्टर के पास जाके इस चीज को कंफर्म कीजिए कि ये उसको पेंसिल से लिख देते हैं हम जैसे कि ये इसके लिए इन्फेक्शन के लिए है, तो ये करेक्ट है या यही मेडिसिन देनी है या फिर इसका कोई और भी कोई सेकंड हिस्ट्री भी है, इस चीज को भी जो है वो डॉक्टर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। या फिर आप जाके डॉक्टर के पास अगर आप हो तो मेरी बात करवा दीजिएगा, या आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है तो हम उससे कोऑर्डिनेट कर लें, तो कम्युनिकेट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या जो है इशू है। समटाइम्स पेशेंट्स आते हैं और एक मेडिसिन की 3 इंडिकेशन है, अगर वो आपसे आके खुद पूछते हैं कि किस चीज के लिए लिखी है, तो अगर आप उसकी कोई सेकेंड इंडिकेशन बताते हैं और वो उसकी इंडिकेशन दूसरी भी होती है, तो आप उसको क्या बोल रहे होंगे, ऑफ लेवल यूज भी होते हैं ना मेडिसिन के, तो अब आपको पेशेंट ये भी टेस्ट कर रहा होता है कि अच्छा हमें तो मसला ही नहीं है तो फिर डॉक्टर ने क्यों लिख दी, तो ऑफ लेवल यूज इसका ये है। तो ये वाले चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन मैं ये बता रही हूँ कि फार्मासिस्ट का एक डॉक्टर के साथ और पेशेंट के साथ दोनों के साथ जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत वेल मैनर्ड वे में होना चाहिए कि आप किसी को भी इंसल्टिंग वे में नहीं बोल सकते, आप पेशेंट को भी नहीं बोल सकते कि ये तो डॉक्टर ने आपको गलत चीज लिख दी है। इस तरह के सेंटेंसेस भी जो एक बैरियर मुझे लगता है फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स में आया था, अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बेटर हुई है, उसके ऊपर बहुत ट्रेनिंग्स हुई है कि आपको अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करना है डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को। तो ये बहुत मैटर करता है, आप फिजिशियन से डिस्कस जरूर कर सकते हैं, आप कॉल पे बात जरूर कर सकते हैं, आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि ये फिलहाल जो है वो आप एक दफा डॉक्टर से करेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन लिखी हुई है कि 25 mg रोवास्टैटिन में तो 5, 10 और 20 आती, 25 तो नहीं आती, तो अब ये डॉक्टर ने गलत लिखा है। नो, नेवर एवर से हम श्योर है 101% की 25 mg रोवास्टैटिन नहीं आती, तो हम पेशेंट को भी इस तरह बोलते हैं कि 25 mg में तो ये अवेलेबल नहीं है, बेबी की उन्होंने आपकी डोज अगर 25 बोली है तो फिर आपको एक 20 mg और एक 5 mg लेनी होगी। इस तरह से आप उसको कम्युनिकेट करेंगे तो फिर जो है वो पेशेंट बोलता है कि ओके हम डॉक्टर से इसे कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस चीज को कम्युनिकेट करते हो कि ये तो आपने इसकी इंडिकेशन तो ये नहीं है और आपने इसको इस तरह इंडिकेट कर दिया, तो ये हम जो है वो एक पेशेंट को भी जो है वो उसका कॉन्फिडेंस भी डॉक्टर के ऊपर से और फार्मासिस्ट दोनों के ऊपर से जो है वो लूज होगा, दोनों के ऊपर उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं हो सकेगा। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो एक टीम अप होके हमें काम करना होता है, वेदर वो हमारे पास लैब लैबोरेटरिस्ट भी आते हैं, वो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनके साथ हमें किस तरह से कम्युनिकेशन अपनी रखनी है पेशेंट के साथ और उसका डेवलप करना है ट्रस्ट फिजिशियन पे भी फार्मासिस्ट पे भी, कि अच्छा वो डॉक्टर को भी हम अगर उसको चैलेंज करेंगे, वो डॉक्टर से जाके बोलोगे आप उस फार्मासिस्ट ने हमें बताया कि आपने ये गलत मेडिसिन दी है, तो इससे क्या होता है फार्मासिस्ट ने बताया ना, तो वो आपका नाम नहीं बताएगा, वो ये नहीं बताएगा, वो बताएगा फार्मासिस्ट ने बताया। तो एक बैरियर क्रिएट करने का जो एक हिंड्रेंस आती है जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर में, उनके रीजंस ये भी होते हैं। तो आप जो है वो कम्युनिकेट अगर आप उनसे करेंगे, डेफिनेटली कोई डॉक्टर भी इस चीज को नहीं करता कि ओके राइट हाँ ये अपर्ट के लिए मैंने ये लिख दिया होगा, वो एडमिट करता है। और अगर नहीं तो फिर वो आपको बताएगा कि नहीं इनकी हिस्ट्री ये भी है और दैट्स वाई मैंने इन दोनों इनकी जो चीजें हैं, ये दोनों जो इनकी डिजीज है उसको कवर करने के लिए ये इस तरह से लिखा है, तो वो आपको डिस्क्राइब कर देगा। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल जो है कम्युनिकेशन मेजर है, की रोल है उसका। अगर वो जो है वो कम्युनिकेट करता है तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स
सही नहीं होंगी, अगर वो जो है वो अपनी बात को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर सकेगा, तो डेफिनेटली वो पेशेंट का भी फिजिशियन का भी ट्रस्ट डेवलप अपने ऊपर नहीं कर पाएगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछे। मैम कुछ फार्मासिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऐसी मेडिकेशन दे देते हैं जो मतलब डेली यूज के हिसाब से नहीं होती और पेशेंट के लिए भी वो सही नहीं है, जैसे कि स्लीपिंग पिल्स जो उसने दे दी हैं, ठीक है। कंट्रोल और मेडिसिन। जी जी मैम, तो उस वजह से ना वो मतलब रोज ले रहा है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें? देखिए लॉक इन की मेडिसिन होती हैं, कंट्रोल मेडिसिन होती हैं, नार्कोटिक्स होती हैं, उनकी पूरा लिस्ट मेंटेन होती है, उसका रजिस्टर मेंटेन होता है। उसमें आप पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन, आप पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन मांगना आपका राइट है, और पेशेंट के पास वो प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। कितनी डेज की उसके अंदर रिफिल है, 40 डेज है, 30 डेज के बाद वो, या 6 मंथ्स के बाद उसको रिन्यू करवाना है, रिफिल है उसकी, ये सारी हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। हमारे पास उसकी एक शीट बनी हुई है, उसमें हम लॉक करते हैं पेशेंट का नेम, उसकी हिस्ट्री, और उसकी इस डेट को उसको डिस्पेंस किया, और जो उसका सुपरवाइजर इंचार्ज उसके सिग्नेचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आज मेरी शिफ्ट एंड होने के बाद जितनी भी नारकोटिक्स गई हैं, कल मॉर्निंग जाके मुझे उसे रिव्यू करना है अपनी तीनों फार्मेसीज में कि कितनी कंट्रोल मेडिसिन गई हैं, और उसके ऊपर मुझे साइन ऑफ करना है। तो ये फार्मासिस्ट का रोल है। फार्मासिस्ट अगर कहीं पर मौजूद है, लॉक इन की और कंट्रोल मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहा है, तो जो उसकी पॉलिसीज हैं उसको फॉलो करना है, उसको सरपास नहीं करना। अगर कोई फार्मासिस्ट ये कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। मैम यस। मैम एज यू टोल्ड अर्लियर कि हमारे पास जो कम्युनिटी फार्मेसी है, इसमें जो हमारे पास की जो है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ही मैटर करती हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि बिटवीन पेशेंट एंड फार्मासिस्ट अगर आप उसको सही तरीके से गाइड कर दें या फिर डॉक्टर से आप इंश्योर कर लें, ऑल्दो आपको पता है कि वो एमजी नहीं है उस मेडिसिन की, तो और कौन से इस की पॉइंट हो सकते हैं जिसके ऊपर एज अ स्टूडेंट अभी हम वो सीखें और मतलब हम इंटर्नशिप के लिए जाएँ तो वो हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। आप हमें ये एम्फसाइज़ कर सकती हैं कौन से ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिस पे हम खुद से वर्किंग करें? अच्छा, सबसे पहले तो जो वर्किंग आपको करनी है वो करनी है कि सबसे ज्यादा आप ये देखें, अगर आप किसी जगह पे किसी काउंटर पे हैं तो कौन सी मोस्ट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स कौन सी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक है वो प्रिस्क्राइब कौन सी हो रही है। ठीक है, सो उसमें सबसे टॉप ऑफ द मेडिसिन वो आ जाएगी आपकी फ्लोरोक्विनोन, नोवाडेट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन जब सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब हो रही है तो उसके की पॉइंट्स क्या है, उसके कौन सा ऐसा मेजर पॉइंट है जो आप अगर पेशेंट को, आपको लगता है कि अगर ये नहीं पता होगा, ये स्किप हो गया, तो वो पूरी डोज उसकी, पूरा यूज उसका और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो जीरो हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वो आपको वो पॉइंट उसको डिलीवर करने, लाइक कैल्शियम के साथ, डेयरी प्रोडक्ट के साथ उस मेडिसिन को नहीं लेना। सेकेंडली आपको फिर देखना है कि अगर कोई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है तो सबसे ज्यादा कौन सी प्रिस्क्राइब हो रही है, कौन सी मेडिसिन जा रही है, उसके क्या की पॉइंट्स हैं, वो क्या काउंसिल करना उसमें जरूरी है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको अगर आप कोई डायबिटिक मेडिसिन दे रहे हैं, मेटफॉर्मिन जा रही है, तो उसमें आपको पेशेंट से जरूर पूछना है कि आप इसके साथ विटामिन B12 ले रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स जो मोस्टली प्रिस्क्राइब, अगर हम डायबिटिक मेडिसिन में देखते हैं तो हमारे पास मेटफॉर्मिन जा रही है, जो कॉम्बिनेशन में भी जा रही होती है एम्पाग्लॉक्सिडिन के साथ, डैपाग्लॉक्सिडिन के साथ, और जो है वो वीडाक्लेप्टिन के साथ। तो मेटफॉर्मिन जो है वो पेशेंट के, और ग्लूकोफेज इंडिविजुअल मेटफॉर्मिन भी हम 500 mg टू 1 ग्राम दे रहे होते हैं। तो मेजरली आप जब ये देखते हो कि एवरी सेकंड हर दूसरे पेशेंट को इस तरह की मेडिसिन जा रही है, तो आपका की पॉइंट, आप सबसे पहले उस पर वर्क क्या करते हो कि उसके काउंसलिंग पॉइंट्स क्या है, उस पे फोकस करना। पेशेंट की जो मेजर, आप उसको कोई भी मेडिसिन दे रहे हो उसका रैशनल यूज की तरह। रैशनल यूज क्या है कि सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, आप ये देखते हो कि वो पेशेंट अपने लिए ले रहा है या अपने किसी रिलेटिव के लिए ले रहा है, अपने पेरेंट्स के लिए ले रहा है, या अपने जो है वो चिल्ड्रंस के लिए, किसके लिए वो मेडिसिन ले रहा है। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि वो हम 5 आवर्स में देखते हैं, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम। देन हम इन 5 आवर्स को फॉलो करते हुए ही अपनी जो है वो पेशेंट को डील करना, कस्टमर को
जो है वो डिलीवर को, अगर वो खुद पेशेंट इटसेल्फ नहीं आया, उसके बिहाफ पे कोई लेने आया हुआ है, तो फिर उसको कैसे हमें गाइड करना है, उस मेडिसिन के ऊपर हमें जो है वो उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज वो फीजिबल है उसमें उसका तरीका लिखना है, उसको बताना है किसके लिए ले रहे हैं और उसको क्या पॉइंट्स बताने हैं, ये बहुत मेजर है। सेकेंडली, अपनी जो टीम जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ की टीम को आप जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त काउंटर पे पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो, तो वो जहाँ इंडिविजुअल्स वहाँ आप आपके साथ काम कर रहे हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं, इंसुलिन है फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट हमारी कंप्लेन है कि कोई पेशेंट को इंसुलिन जो है वो नहीं यूज करना आती थी और उसने फर्स्ट टाइम ली और उसको सही से किसी टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन था, कोई फार्मासिस्ट जिसमें अवेलेबल नहीं था, तो उसने जो है वो ऐसे ही उसको डिस्पेंस कर दी, प्रॉपर उसको गाइड किए बगैर, ना उसके साथ नेडल्स नहीं दी, उसको लगाने का तरीका नहीं आया और उससे जो है वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव जो मेडिसिन थी वो उसकी वेस्ट हो गई। ये कंप्लेन जो है वो अभी रिसेंट हमारे पास आई। तो ये सारे पॉइंट्स, मतलब अगर इंसुलिन एक तो हाई एलर्ट मेडिसिन है, हाई एलर्ट मेडिसिन का कौन सी मेडिसिन होती है जिनका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है, मींस के उनकी थोड़ा सा भी मिसयूज या उनकी थोड़ी सी भी ओवरडोज या अंडरडोज अगर वो मेडिसिन ली और उसकी टॉक्सिसिटी लेवल जो है फौरन बीट करती है, मतलब कि वो थोड़ी सी उसमें भी नेग्लिजेंस के अंदर भी बहुत ज्यादा लाइफ स्टार्टिंग हो सकती है। तो इंसुलिन इंजेक्शन हमारे पास जो है वो नशा केस सेहत का आप सबको पता ही होगा कि वो क्या हुआ था, उसमें पोटेशियम क्लोराइड जो है वो डाइल्यूटेड नहीं था वहां पे, और उसको अब जो है वो कंसंट्रेटेड पोटेशियम से क्या जो है वो केस हुआ। तो ये वाली सारी चीजें जो फार्मासिस्ट का रोल है, सबसे पहले तो आप किसी जगह पे खड़े हैं तो आप वहां देखें कि आप कैसे यूज कर सकते हैं रैशनल यूज के लिए। सबसे पहले तो जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं वो हाँ मेडिसिन की शेल्फिंग किस तरह से, लास्ट मेडिसिन किस तरह से लगी हुई है, हाई एलर्ट मेडिकेशन की लेबलिंग हुई है या नहीं हुई थी, लोकल लाइक साउंड लाइक मेडिसिन अलग है या नहीं है, टेनोरबिन टेनोरेट एक जैसी मेडिसिन है, जेस्टिल पूरी रेंज सेम है, साथ लगी हुई नहीं लगी हुई, उनके बीच में कोई स्ट्रेंथ लगी हुई है या नहीं लगी हुई, ये सारी चीजें बहुत मेक श्योर करने वाली होती है कि आप जिस जगह पे हो। मैंने अपने ट्रेनिंग्स को दिया कि मेरी फार्मेसी मुझे इस तरह से डिजाइन करके देनी है आपको कि मुझे लगे कि यहाँ कोई फार्मासिस्ट जो है वो इसकी लेबलिंग करके गया है या इस फार्मेसी को सेट करके गया है। तो उसमें आप अल्फाबेटिक वाइज लिख रहे हो, आप जेनरिक वाइज लिख रहे हो, आप मैक्सिमम अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हो कि आप जो एरर्स हैं उसको मिनिमाइज करो, जितने कम एरर्स होंगे, जितना इजी जो है वो जो उसकी डिस्पेंसिंग होगी, उसकी जो है वो रीडिंग होगी, शेल्फ की जो है वो आपकी लेबलिंग होगी, उतना आप मिनिमाइज कर सकते हो इफेक्ट को। तो सिर्फ फार्मासिस्ट का रोल ये कि एज अ इंटर्न लेवल पे जो है, अगर आपको इंटर्नशिप लेवल पे या किसी को तो टास्क आपका सबसे बड़ा, तो आपको फोकस ये करना है कि आपकी मेडिसिन जो है उनकी शेल्फिंग और प्लेसमेंट क्या है, क्या हाईलाइट मेडिकेशन जो है वो सेपरेट हुई भी या नहीं हुई भी, या अगर कोई जो है वो एक एक शिफ्ट में कोई एक अकेला स्टाफ है और वो 4 पेशेंट को डील कर रहा है, तो क्या उसके लिए डिस्पेंसिंग इजी है या नहीं है, क्या वो लेबलिंग उसके अकॉर्डिंग हुई भी है या नहीं हुई भी। तो फार्मासिस्ट जिस जगह पे है वो जगह बताती है कि यहाँ फार्मासिस्ट काम करता है किसी भी शिफ्ट के अंदर, ये इस जगह को फार्मासिस्ट लीड कर रहा है। तो ये जो एक डिफरेंस है एक लोकल मेडिकल स्टोर्स का कि टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, प्रॉपर लेबलिंग्स, तो ये आपके 50 से 60% तो आपके जो एरर्स है उसको मिनिमाइज कर देती है। मतलब मिनिमाइज क्या करती है, ऑलमोस्ट जो है वो आपके एरर्स के चांसेस ही हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी जो शेल्फमेंट है, आपकी जो शेल्फिंग है, आपकी जो प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें अगर प्रॉपर नहीं होती, तो फार्मासिस्ट का रोल जो है वो एक जगह पे मुझे लगता है सिर्फ काउंटर पे पेशेंट को डिस्पेंस और काउंसिल करना नहीं है। फार्मासिस्ट का रोल एक फार्मेसी के अंदर एवरी स्टेज, एवरी कॉर्नर के ऊपर है। और मैं अगर अपनी बात भी करती हूँ कि मुझे बहुत सारे टास्क देखने के साथ साथ मैं ये जरूर देखती हूँ कि मैं जो अपनी ट्रेनिंग लेवल से और इंटर्नशिप लेवल से जो काम करते हुए आ रही हूँ वो काम मुझे सुबह देखने हैं। मुझे देखना है कि मेरी शेल्फिंग पे लेबल सही हुए में या नहीं हुए, मेरे फ्रिज आइटम पे हाई ब्लड मेडिकेशन का लेबल हटा तो नहीं है, मेरे जो टेक्नीशियन डिस्पेंसिंग कर रहे हैं वो किस एरिया और उसकी शेल्फिंग क्या है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप होती है, ये आपको, अगर आपको लगता है कि आप कहीं भी थोड़ा सा भी एफर्ट कर रहे हो तो वो अब कोई नहीं देख रहा, आपके सीनियर्स नहीं बैठे हुए, मैं जहाँ पे हूँ मैं
मेरी ये इस टाइम सेकंड प्रमोशन है अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और बहुत उस डेजिग्नेशन पे जहाँ शायद मैं मेरे साथी पुलिस अगर 10 years भी गए तो उस डेजिग्नेशन में, और मैं खुद भी नहीं इमेजिन करती कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है इससे मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। मैं जहाँ खड़ी हूँ वहां पे मैं क्या चेंज लेके आ रही हूँ, बीइंग अ फार्मासिस्ट में वहाँ क्या रोल प्ले कर रही हूँ। इवन मेरा जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो तक उस तक को मैं ट्रेन कर रही होती हूँ चीजों के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर, और वो खुद इंटरेस्ट ले रहा होता है कि ये किसके क्या इफेक्ट क्या नहीं है। तो एक फार्मासिस्ट जहाँ मौजूद होता है मुझे लगता है वहां जो उसका रोल है उसको जरूरत ही नहीं है ये देखने की कि ये काम हमारा है या नहीं है, ये हमें करना है या नहीं करना। और हमें सिर्फ फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे भी, आप जहाँ पे भी हो, आप जिस भी डेजिग्नेशन पे, अगेन मैं यही कहूंगी, आप चेंज लेके आ सकते हो। आप चेंज लेके आओगे तो ऐसा है ही नहीं कि आपकी कोई भी एफर्ट्स जो है वो नोटिस ना हो। हर चीज नोटिस होती है, हर चीज का रिवॉर्ड होता है, और आपको उस पे जो है वो अपना, बस ये है कि अगर आप अपनी किसी डेस्टिनेशन पे कहीं पहुंचना चाहते हो तो आप कितनी दफा गिरते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी दफा उठ के वापस वहां तक जाने के लिए एफर्ट करते हैं इससे ये जरूर मैटर करती है। आई गेस हम सेशन को अब एंड करते हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मैम सेशन मेरा था। और क्वेश्चन है। जिसका क्वेश्चन है काइंडली वो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर ले, या फिर मुझे पास ऑन कर दे, तो उसका आंसर उसको मिल जाएगा जरूर। लेकिन हम इस सेशन को अब एंड करेंगे क्योंकि टाइम अब काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जवेरिया फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल सेशन. We truly appreciate your time, your expertise, and valuable contribution towards strengthening antimicrobial stewardship in community pharmacy practice. So I would like to thank you all as well for your active presence and engagement. Stay connected with Nurturing Community Pharmacy in Pakistan for upcoming sessions and learning opportunities. Have a wonderful night. Thank you. Oh, thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.